Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So guys, this is the day that we are going to discuss queues. What are queues in depth? I'll be telling you everything about queues, how we can create them in Orchestrator, what are the activities that we can use them to manipulate the queues inside of Studio, what are priorities, what are deadlines, everything, what is the auto retry function of the queue, what is the unique reference of the queue, जो कि बहुत रेयर है कि आपको यूट्यूब में मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस एंड लेट्स क्विकली गो टू द एकेडमी. ठीक है, एंड विल बी स्टार्टिंग विद द क्यूज चैप्टर टुडे. ठीक है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 1 or 2 पार्ट्स. लेट्स सी हाउ इट गोज एंड बिकॉज मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगा अबाउट क्यूज सो दैट यू गाइस कैन बी getting the concept of queues in no time. आपको समझ में आना चाहिए queue in depth because in RE framework ahead we'll be using queues majorly over there and in a companies also in the enterprise everything over there applications पे queues बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. तो let's see that what are queues over there. ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं what are queues. So as you can see queues are containers that can hold an unlimited number of items. See, when you talk about Excel now, so Excel has a limitation. I think it has a limitation of 16,000 columns and some 1 lakh rows, I guess, approximately. So there is no limitation on queues. You can handle a lot of data with the help of queues over there. And in very layman terms, guys, queue means a line. You are standing in a queue to buy a ticket of a movie that you like. Let's suppose Deadpool vs Wolverine. सबने देखी, right? It was a good movie by standards, right? You're standing in a queue to buy the movie ticket of Deadpool versus Wolverine, and you are in a queue. You are in a line. So it will be following first in, first out methodology. ठीक है, इट विल बी फॉलोइंग व्हाट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथोडोलॉजी. मतलब जो पहले आया वो पहले ले गए. तो फर्स्ट पर्सन एट द एंड ऑफ एट द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन विल बी गेटिंग द टिकट फर्स्ट एंड इट विल बी गोइंग इनसाइड द मूवी थिएटर. सिंपल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लाइक दैट. फर्स्ट इन मीन फर्स्ट एट द लाइन, फर्स्ट आउट. सिंपल एज इट इज, बहुत सिंपल है. तो दिस इज द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय क्यूज ओनली. ठीक है, क्यूज ये मेथोडोलॉजी फॉलो करती है. जो पहले आता है वो पहले जाता है. ठीक है, चलिए. एंड इट कैन स्टोर अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा. इट कैन स्टोर मेनी टाइप ऑफ डेटा. क्यू एक क्यू बहुत टाइप के डेटा स्टोर कर सकती है बाय डिफॉल्ट इन अ फ्री फॉर्म. मतलब इसमें कोई स्ट्रक्चराइज वे में यहाँ पे हम नहीं रखेंगे डेटा को. बाय डिफॉल्ट फ्री फॉर्म में अगर आपको कोई डेटा, इफ यू वांट टू स्टोर सम डेटा इनसाइड ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, स्पेसिफिक स्ट्रक्चराइज वे में आपको अगर डेटा चाहिए, so you can use JSON schema also over there. You can define your own JSON schema and you can upload the items over there in a queue in a proper structured format. Generally queues we are using queue with the help of Excel data, pushing data into the queues and well, and that will be the use case of this video only. We are gonna automating RPA challenge with the help of queues. I think I'll be using flowchart. Let's see how it goes inside the studio. ठीक है, तो लेट्स क्विकली गो इनसाइड द स्टूडियो एंड क्लिक हेयर प्रोसेस. I'll type a name for my process that is chapter 903. No, 903 भी होगा एकदम, कोई बात नहीं. ठीक है, queues demo, that is queues demo. I'll create my process. ठीक है, I hope guys यहाँ तक सबको क्लियर है. Everybody is getting understood till here. ठीक है, right? So I'll let you know the use case. We have a Excel. यहाँ पे हमें Excel है. I'll show you guys. But this is the Excel. It just had a small glitch. Let's save it. Okay, this is the Excel. I need to push the data of the Excel inside this form and press submit on every transaction over there. This is a dynamic form, but we are using a modern design, so it will automatically take the anchor and the selectors. It generally be uses the fuzzy selectors over there. ठीक है, got it? तो ये हमारा task है, but we'll be doing it with the help of a queue. Got it? And there will be a also method called dispatcher and a performer method. I'll show you guys what is a dispatcher and what is a performer method over there. Got it? ठीक है, तो ये मेरा प्रोसेस यहाँ बन गया है. I just need to go over here एंड मैं इसको पहले 140% कर देता हूँ so that you guys can see easily. Don't have to zoom in your phones and zoom in your YouTube if you are watching from a desktop or laptop. ठीक है,
ये है, आई जस्ट से RPA challenge dispatcher. So this will be what populating my queue. जो queue में orchestrator ने बनाऊंगा वो इसके अंदर items को populate करेगा, मतलब भरेगा, ठीक है. It will be populating queue for me. This whole process will be populating the queue for me, ठीक है. The first part will be what I have to what I have to read the Excel. I have to read the Excel. So this is a modern design series. So we'll be using the modern design activities over there. I'll be using the Excel process scope. Inside of that, I'll be using a use Excel activity. Sorry, use Excel file. I will be giving my file name challenge 10, and now I'll be reading as read range over there. So that is Excel dot sheet 1. It took it automatically, and now it will be range will be up. Cool. And I'll be saving it to dt underscore input over there like this. Okay, I'll disable this, and here I'll say raw value that it can process a lot faster, right? So this will be what, this will be saving my all the this Excel to a data table variable that is dt underscore input. ठीक है, इस Excel को save करेगा dt underscore input में. I'll be changing my scope of dt underscore input to what, to the dispatcher part. ठीक है, got it. So I'll just quickly create one queue over there. So guys, to make a queue, you are in your dashboard like this. आप लोग अपने dashboard में हैं like this. ठीक है, you will have to go to your modern folder because queues are a folder scoped entity, guys. So you have to, you know, create another queue of your folder as well. ठीक है, अगर आप दूसरे folder में हैं, you have to create that queue. Got it. Go to the queues part, add a queue over there. You can also link the queue from other folder as well. That will be a shared queue. ठीक है, create a new queue. यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा RPA sorry, challenge dem. I'll be also using a description over here. RPA challenge demo queue. Simple. ठीक है, अबाउट ऑल दिस पार्ट आई बी टेलिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो बिकॉज ये अभी मैं आपको नहीं बताना चाहता. आई जस्ट वांट यू नो letting you know guys the basic function of queue. In the next video we'll be also discussing some important concept like unique references and auto retry over there. ठीक है, right? चलिए, so I'll just create queue add, and we have successfully added the queue. I'll copy the name of the queue, and now you can see, press on this ellipsis button over there and view transactions. There is nothing to transact over here. There are no transactions. One more thing about queue guys, जो भी इसके अंदर data होगा it will be formed in a form of a transaction. One atomic item will be there, it will be called a atomic transaction will be there, it will be called a transaction. बहुत ही small transaction होगा, like it will be like this. See, John, this row will be a transaction, this row will be transaction, this row will be transaction, different rows will be transactions over there. Got it? ठीक है, we can also upload the data over here as well. तो अगर मुझे अपलोड करना डेटा वहां से भी कर सकते हैं हम लोग, राइट? I can download the data from here as well. Not upload, I can download the data here as well. It's saying export not import. ठीक है guys, चलिए, ठीक है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट? ये पार्ट, बाकी का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो, जस्ट कमिंग वीडियो. ठीक है, चलिए, this is done. I'll close my scope over there. I'll add an activity in UiPath called bulk add queue items. Why bulk add queue items? Because we are dealing with a data table over there and it also accepts a data table like this. ठीक है, तो we'll be giving a data table. तभी मैंने इसका स्कोप बदला बिकॉज ये अलग स्कोप का है. Queue name, first I'll be choosing my folder dev. Queue name will be RP challenge demo like this. ठीक है, तो ये मेरा क्या करेगा, इट विल बी पॉपुलेटिंग द क्यू ओवर देयर. ठीक है, पॉपुलेटिंग द क्यू. सी नाउ वी डोंट हैव एनी ट्रांजैक्शंस ओवर देयर. आप देख सकते हो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसके अंदर. ठीक है, यू कैन आल्सो सी दैट लाइक दिस, राइट? देयर आर नो ट्रांजैक्शंस लाइक दिस. अभी इसके अंदर क्या है, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है. तो अभी जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे
it will having some transactions over there, right? Oh, yeah, we can also open this because we are not using classic design over there. ठीक है, debug करेंगे इसको हम. Something missing from here, it's taking a lot of time. oh अच्छा हो गया, ठीक है. थिंक यहाँ पे रॉ वैल्यू, अच्छा इसमें भी रॉ, या चलिए. तो आई व्हेन आई रिफ्रेश इट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ आइटम्स अवेलेबल हैं. मैं यहाँ से 100 कर देता हूँ ताकि और भी कुछ आ जाएगा. तो यहाँ देर आर 10 आइटम्स ओवर देयर. आप देख सकते हैं कि जो मेरी रो है इट इज ऑल्सो हैविंग 10 items over there as well. Count is 10. Got it? Count is 10. ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बंद. तो ये क्या है, ये मेरा अलग अलग ट्रांजेक्शन बन गया. इसको मैं खोल के भी देख सकता हूँ. आई गो इनटू दिस डिटेल पार्ट. यहाँ आप देख सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड स्पेसिफिक डेटा इज ऑब्जेक्ट, आउटपुट डेटा इज नल, एनालिटिक्स डेटा इज नल एज वेल. बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, first name is Lara, last name is Palmer, company name, time path, everything from the Excel sheet has been transferred to my queue in the form of a small atomic transactions over there. ठीक है, ये transactions बन चुके हैं हमारे यहाँ पे अलग 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 अलग. ठीक है, एंड ऑल दिस, ये इसका क्या आउटपुट रहेगा, जो मेरी बल्क एड क्यू आइटम्स है, इट विल बी एडिंग द क्यू आइटम्स एक साथ ऐड करेगा आपके क्यू के अंदर जाके, एंड इट विल बी क्रिएटिंग द प्रोसेस स्टेटस एज न्यू. ठीक है, इन प्रोग्रेस नहीं करेगा, इट विल बी क्रिएटिंग द प्रोसेस स्टेटस एज न्यू. विल बी आल्सो डिस्कसिंग सेवरल एक्टिविटीज. क्या डिफरेंस है ऐड ट्रांजैक्शन आइटम में, ऐड क्यू आइटम्स में एंड ऑल. आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, डोंट वरी. ठीक है, थोड़े लंबे वीडियोस होंगे गाइस, सॉरी थोड़ा ज्यादा वीडियोस होंगे क्योंकि आई डोंट वांट टू बोर यू गाइस. ठीक है, विद लॉन्ग वीडियोस एंड ऑल. ठीक है, तो दिस हैज, इसका काम पूरा हो चुका है मेरा अबाउट दिस प्रोसेस. ठीक है, आई विल बी क्रिएटिंग एन अनदर प्रोसेस ओवर हियर. आई विल से चैप्टर 93, I'll say performer. ठीक है, RPA challenge performer. So this will be performing some act on my queue. जो मैंने queue बनाई है, that is why it's called a dispatcher and a performer mode. Dispatcher means sending the items to the queue or populating the items to the queue. Performer means doing some work on that specific data of the queue. Got it guys? बहुत easy है. ठीक है, I'll just rename it as well, RPA challenge performer. ठीक है, परफॉर्मर यहाँ पे हो गया. तो अब आई विल बी यूजिंग दिस टाइप. मैं काम करता हूँ, आई विल जस्ट यूज फ्लो चार्ट ओवर देयर. ठीक है, मैं अच्छा यहाँ बना लेता हूँ फ्लो चार्ट, इसके अंदर बना लेता हूँ. बी क्रिएटिंग एज अनदर एक्टिविटी, अनदर एग्जाम्पल बना देगा वो. यहाँ बना देता हूँ ऐसे भी. ठीक है, तो दिस इज माई फ्लो चार्ट ओवर देयर. इसको मैं कर देता हूँ RPA चैलेंज परफॉर्मर. ठीक है, गॉट इट. फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट का रिवीजन भी हो जाएगा हमारे, ये सबने बताया था. ठीक है, आई डिडंट थिंक वैसे डिस्कस किया है फ्लो चार्ट अभी तक. चलिए देख भी लें कैसे होता है. ठीक है, एवरीथिंग विल बी देयर. तो अब हमने क्या करना है गाइस, देखिए यहाँ पे यूआई ऑटोमेशन तो हम कर ही लेंगे. क्या यूआई ऑटोमेशन तो हम कर ही लेंगे, बट द मेन थिंग इज टू गेट द आइटम्स फ्रॉम द क्यू. अब मुझे क्यू से आइटम्स को लेना है. ठीक है, तो व्हाट अबाउट दिस. ओके, सो वी हैव एन एक्टिविटी इन यूआई पाथ कॉल्ड गेट ट्रांजैक्शन आइटम. ठीक है, यहां मैं करूंगा, यहाँ पे 4 बॉक्सेस आएंगे बनके. हैव टू इस पे क्लिक करना है. कई लोग बोलते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे हो जाता है. ऐसे ऐसे नहीं होगा ना, आप इसको ऐसे करो. एंड ये एरो है, कर्सर है मेरे, इसको इस ट्रायंगल जो बना हुआ है, जो एरो डाउन की तरफ प्रेस कर रहा है, वहां पे ऐसे डाल दूं, सिंपल, वो सीधा आ जाएगा स्ट्रेट. ठीक है, इसको जूम इट 40%. ठीक है, this is giving error because we have not configured this properly. Get transaction item will be there. The orchestrator folder path is dev. Orchestrator queue name, it will be asking, expecting queue name as well, RPA challenge demo. Now the error has been diminished. So it will be getting a single transaction item at a time. Single transaction item at a time. ठीक है, got it. अब यहाँ पे item get कर रहा है तो कहीं store भी करेगा. It will be saving some item over there, right? So I'll have a variable created over there in the output called transaction
आइटम, और ट्रान आइटम भी आप कह सकते हैं. वेरी थिंग इंपॉर्टेंट टू नोटिस अबाउट दिस, दिस विल बी ऑफ टाइप, दिस विल बी ऑफ टाइप क्यू आइटम. ये क्यू आइटम आपका वेरिएबल होगा, ठीक है. इसके अंदर में भी इसको आप एक्सेस कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट, ठीक है. दिस विल बी ऑफ टाइप क्यू आइटम, यहाँ लिखा है ऊपर क्यू आइटम टाइप वेरिएबल आपका ये होगा, ठीक है. गॉट इट. आई होप दैट दिस इज क्लियर गाइस. इतना आपको समझ में आया होगा यहाँ तक. तो अभी हमने क्या किया, हमने एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे ले लिया है, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो 10 तक हो गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है. गॉट इट माई पॉइंट. अगर मेरा ट्रांजेक्शन 10 खत्म हो गए, तो हाउ वुड आई नो that my process will be continuing here or not? So we have another activity in there. If you'll write flow on the left hand side, you can focus. So we have a activity called flow decision. It's just like an if condition over there. जैसे एक normal if होता है, तो यहाँ पे क्या है, it's accepts a boolean condition over there which will be giving two branches. दो शाखाएं निकल जाएंगे. जैसे पेड़ की शाखा होती है ना, पेड़ ट्री की ब्रांचेस होती हैं. There will be two branches over there. One is true, one is false. If the condition is okay, it will be going to the true branch. If the condition is false, it will be going to the false branch over there. Got it? So यहाँ पे I'll be giving condition over there. Zoom it. I'll say transaction item is not nothing. मैंने आपको बताया था not is. अगर मैं not को हटा दूं, अगर क्या है, अगर मैं not को हटा दूं, ट्रांजेक्शन इफ नथिंग मींस इट इज नल, जीरो आगे बढ़ेगा, इट विल ओनली गोइंग टू द फॉल्स पार्ट, हमेशा वहां चले जाए. अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, सॉरी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या है, इट विल बी डूइंग समथिंग, और ये कंडीशन फॉल्स होती है, इट विल बी डूइंग समथिंग, ठीक है. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट इनवर्स दिस कंडीशन लाइक दिस. माय ट्रांजेक्शन आइटम इज नॉट नथिंग मींस ट्रांजेक्शन आइटम इज समथिंग नाउ. नथिंग था, मैंने उसे नॉट कर दिया है, नहीं था वो होगा अब. इतना पार्ट क्लियर. सिंपल डॉटेड एक्सप्रेशन गाइस, वेरी सिंपल, ठीक है. सो यहां आप देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो होवर इट, ऐसे करके हम इसको यहां डाल देते हैं लाइक दिस. चेकिंग आई कैन से ट्रान आइटम लाइक जिसकी भाई ट्रांजेक्शन आइटम है भी कि नहीं है, ठीक है. नहीं होगा तो वो नहीं जाएगा, ठीक है. तो अगर वो नहीं है यहाँ पे, अगर ट्रांजेक्शन आइटम इज नॉट नथिंग, सो जस्ट चेकिंग दैट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चलेगा ही ऑब्वियसली. सो विल बी व्हाट, वी विल बी यूजिंग दिस पार्ट. लॉग मैसेज हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, एंड इनसाइड ऑफ द लॉग मैसेज आई कैन राइट ट्रांजैक्शन executing. Got it? ठीक है. Save over there like this. ठीक है. आई थिंक इतना क्लियर है आपको कि ये हमने यहाँ पे कैसे किया हुआ है, ठीक है. ये मेरा फ्लो चार्ट के अंदर है हम अभी यहाँ पे. सो द मेन थिंग इज दैट यहाँ अगर ये ट्रू होगा, मतलब अगर इसके अंदर को देखिए, यहाँ ऑटोमेटिक ब्रांच आएगी ट्रू, और अगर ये फॉल्स होता है, अगर क्या है, अगर ये फॉल्स होता है तो यहां ऐसे आ जाएगा. तो आई कैन राइट दैट, आई कैन राइट नो मोर ट्रांजैक्शंस टू वर्क ऑन. सिंपल. मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं. इसके अंदर बस मुझे यहाँ पे क्या है, अपना एक सीक्वेंस को कॉल करना है. यहाँ पे आई जस्ट हैव टू क्रिएट अ सिंपल सीक्वेंस ओवर देयर, आई हैव टू कॉल इट ओवर देयर. सिंपल. तो यहाँ एक सीक्वेंस कॉल हो जाएगी, यहाँ एक सीक्वेंस कॉल हो जाएगी. सिंपल गाइस, एज इट इज. गॉट इट. अच्छा, जब मेरी ये सीक्वेंस कॉल होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा ट्रांजैक्शन आइटम है, इसने ये पूरा, सॉरी, इसने क्या किया, इसने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया. हाउ विल इट नो टू गेट अनदर ट्रांजैक्शन आइटम नाउ? वी आर नॉट यूजिंग एनी लूप्स, राइट? वी आर नॉट व्हाट यूजिंग एनी लूप्स. व्हाट वी कैन डू, यहाँ देख सकते हो वी हैव 4 पॉइंट्स ओवर देयर. तो फ्लो चार्ट है, राइट? आई होप सबको पता है फ्लो चार्ट कैसे काम करता है. जस्ट एरोज एंड ऑल द डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स आर देयर इन द फ्लो चार्ट. दैट्स व्हाई वी यूज फ्लो चार्ट ओवर देयर मोर. ठीक है, तो विल बी जस्ट indicating it like this. So आप देख सकते हो guys कि start हुआ, it procured the transaction item from here, it checked whether transaction item is something, it went to true, it did its part over there and again went here. This will loop over there like this.
ठीक है, फॉल्स पे होगा तो ये यहाँ नहीं जाएगा फिर से, ये क्या है, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसे बंद करवाना है ना प्रोसेस यहाँ पे, बिकॉज इफ इट्स नथिंग तभी तो यहाँ जाएगा। ठीक है, अगर समथिंग है तो यहाँ जाएगा, नथिंग है तो यहाँ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो मैं इसको फॉर दिस पर्पज नथिंग ऐसे डाल देता हूँ, और एक वी कैन डू लाइक दिस एंड एंड। ठीक है, एंड processing like this. ठीक है, and I'll run it. देखिए, तो आप देख सकते हैं कि जो नो ट्रांजैक्शन डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, ये हमारी क्यूज पूरी अब चल चुकी है, यहाँ गया, इसके अंदर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, एवरीथिंग वाज देयर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। मैं इसको एक बार दोबारा चला के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो। ठीक है, अगेन डिलीट द क्यू। इसलिए जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक, क्योंकि अंदर का हमने तो किया हुआ है, वी हैव डन इट विद द हेल्प ऑफ ए nav टैग्स। ठीक है, RPA challenge delete, again add a queue, RPA challenge demo add। ठीक है, I'll run my dispatcher pretty fast। ठीक है, it added it, and now I'll go to the performer again, and फर्स्ट मैं मैनेज पैकेज से अपने एक्टिविटीज़ को अपडेट कर लेता हूँ चाहिए। डोंट नीड द टेस्टिंग एक्टिविटीज, आई नीड दिस, डोंट नीड मेड एक्टिविटीज ओवर हियर। तो ऑलवेज अपडेटेड पैकेजेस गाइस, यूआईपाथ हमेशा कुछ रोल ऑन्स करता है फीचर्स की, तो यू हैव टू बी वेरी pretty much consistent about it to updating the packages as well। जब भी यहाँ पे ऐसा आइकन आता है अप वाला, तो यू कैन ऑलवेज अपडेट योर पैकेजेस होते हैं। ठीक है, तो हम इसको दोबारा ही चलाएंगे, बट वेरी स्लो स्टेप। अब देखिएगा, यहाँ पे हम कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस, यहाँ सब कुछ न्यू है, एवरीथिंग इज न्यू। सो दिस ट्रांजैक्शन विल बी इन प्रोग्रेस नाउ। I'll press step into, it is getting the transaction, it went over here, and I'll refresh my queue. So you can see that it is in progress now। Now this is the first transaction guys। ठीक है, first in first out, not first in first out, ये ऐसे नहीं है, नीचे आया है first in तो first out है। ठीक है, first in queue है, first in है, first out है, सिंपल ऐसे मान के चलो, सिंपल। इट्स नॉट अ इट इज अ वर्टिकल क्यू, नॉट अ हॉरिजॉन्टल क्यू। ठीक है, ऐसे क्यू है, तो कोई अगर आप कुछ चीज डालोगे ऊपर से तो क्यू बढ़ते रहेगा आपका। ठीक है, तो निकलेगा भी यहां से पहले, सिंपल। अब ऐसे मान के चलो, क्यू इज दिस, वर्टिकल क्यू इज दिस, राइट। इफ यू विल पुटिंग समथिंग ओवर हियर, इट विल बी फिलिंग अ फास्ट, यहां से ऐसे फिल होगा। ठीक है, जब ये स्टार्टिंग से फिल होगा यहां से, तो इट विल बी टेकिंग समथिंग आउट फ्रॉम हियर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। करेक्ट, सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे वेरी सिंपल। अगर इफ यू विल नॉट बी सीइंग इट थ्रू द वे आई सी इट, कैन बी हार्ड एज वेल ऑन योर आईज। ठीक है, तो इट विल बी चेकिंग दैट वेदर वी हैव अ ट्रांजैक्शन आइटम नॉट ओवर हियर, इट इज समथिंग, इट विल बी गोइंग टू द ट्रू ब्रांच। ठीक है, इट सेट द ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट, मतलब वो अपना काम कर देगा वहां के अंदर जाके, एंड अगेन इट विल बी चेकिंग, अगेन इट वी हैव समथिंग, एंड लाइक दिस इट विल बी गोइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, इट इज हाउ इट्स वर्किंग। आई होप इट इज अंडरस्टूड। Got it? ठीक है, I'll expedite the process and we are done। ठीक है, pretty much easy। Got it। So now let's quickly delete these two branches over there and create a new sequence। I'll say RPA challenge form fill, right? So I'll be filling up the form in this sequence। Now to do it, we just need to do the application and the browser thing। यहाँ हमारे अंदर जाएंगे and we'll be choosing the
area that we have to perform the tasks on. ठीक है, it will be closing never. ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, जस्ट नीड टू टाइप इनटू, यहाँ पे बहुत क्रिटिकल कंसेप्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या है. फर्स्ट नेम इज हियर लाइक दिस. अच्छा, सॉरी माय बैड, सो यू सेव इट. ठीक है, अब ये जो मेरा गेट ट्रांजेक्शन का जो आइटम है, दिस इज आरपी चैलेंज परफॉर्मर, ये इसके अंदर लाई कर रहा है. ठीक है, अब जब मैं यहां जाता हूं इनसाइड दिस पार्ट, आरपी चैलेंज फॉर्म फिल, एंड आई विल डू वन थिंग. ठीक है, अभी इसको मैं यहां लगा देता हूं ऐसे करके, ट्रू. अगर ये होता है तो ये इसके अंदर इट विल बी कॉल्ड ओवर हेयर लाइक दिस. ठीक है, ये ऐसे करके जाएगा. सो I'll go over here inside of this part, open the workflow, and I'll search for a transaction item variable. We are not getting anything because क्यों? क्योंकि दूसरा workflow है ना, जैसे दूसरा sequence, we have to invoke it over here. So I'll be just creating a simple argument over here, n underscore transaction item. आर्गुमेंट का कंसेप्ट सबको पता है. डोंट टेल मी ये भी अभी तक आपको नहीं पता है. द आर्गुमेंट टाइप विल बी क्यू आइटम because the transaction type is a queue item. Argument type will be also of the queue item. We will save it. Obviously we have to save this workflow first, and now it will be showing it over here. Import the arguments over there like this. ठीक है, ये है, and this will be transaction item. ठीक है, Got it. Now if I'll be using it over here, तो यहाँ पे दिखेगा because मेरे वेरिएबल बन चुका है यहाँ पे, सॉरी आर्गुमेंट बन चुका है. ठीक है, अब now guys one more thing I like to highlight you guys, one more thing. ठीक है, जब भी मैं इसको I'll be running it from here, कुछ पेंडिंग है मेरे पास आइटम, सब खत्म हो गए ना. नो वरीज, मैं दोबारा बना देता हूँ. सी, अगर थोड़ा हमें ऐसा बनाने में बार बार होता है तो डोंट हैव टू क्रिएट एनी दिक्कत अमंग अस, बिकॉज सी क्यों, क्योंकि अगर टाइम लगता है हमें, क्योंकि तो वी आर जस्ट लर्निंग ओवर हियर, राइट. हम सब लोग यहाँ पे लर्न कर रहे हैं. ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ अबाउट इट. आरपीए चैलेंज डेम. ठीक है, go again to my dispatcher part. I'll quickly run it. So I hope आपको समझ में आ रहा होगा dispatcher क्या काम कर रहा है proper, how it's functioning and all, everything is there. ठीक है, go again to the performer. I have it. Datas are there, right? हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. I hope it's visible to you guys now. Yeah. या ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब भी मैं ट्रांजैक्शन डेटा ले रहा हूँ तो आई विल बी पुटिंग अ ब्रेक पॉइंट ओवर देयर, एंड लेट्स सी इन द इमीडिएट पैनल नाउ दैट व्हाट इट्स गोइंग ऑन ओवर देयर. ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे देयर इज अ वेरिएबल कॉल्ड ट्रांजैक्शन आइटम. अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यू कैन सी ऑन द अपर हैंड साइड, यहाँ पे मेरी फोटो आ रही है, बट यू कैन सी ऑन द अपर हैंड साइड, जैसे मैं ट्रांजैक्शन आइटम वेरिएबल लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं क्यू आइटम, असाइन टू नल, ड्यू डेट नल, आइटम की जो भी है, लास्ट प्रोसेसिंग नल, पेरेंट ऑपरेशन एवरीथिंग, बट वी हैव टू सर्च फॉर अ क्यू डेफिनेशन आईडी इज आल्सो नल. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हाँ यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफिक कंटेंट. सो दिस इज द स्पेसिफिक कंटेंट जब आप ट्रांजैक्शन आइटम में कॉल करोगे, जहां आपका डेटा स्टोर होगा. ठीक है, ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर जब हम जाएंगे, कॉल करेंगे उसको, इनसाइड द स्पेसिफिक कंटेंट देयर विल बी अ डेटा, एंड द स्पेसिफिक कंटेंट विल बी ऑफ व्हाट टाइप, डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट ओवर. यू कैन सी दैट ये मेरी पहली रो दिख रही है यहाँ पूरी की पूरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेरी पूरी पहली रो दिख. फर्स्ट नेम इज जॉन, लास्ट नेम इज स्मिथ, कंपनी नेम आईटी सॉल्यूशंस, रोल इन कंपनी एनालिस्ट, एड्रेस इज एक्सवाईजी, ईमेल इज एक्स, फोन नंबर इज. ठीक है, गॉट इट. इस स्टेटस भी लिखा है इन प्रोग्रेस ओवर देयर, स्टेटस भी है इसके पास. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर गाइस. ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन निकाल कर लाएगा, व्हाट इट्स को सिंगल ट्रांजैक्शन आपके पास देगा. इट विल नॉट गिविंग यू एवरी ट्रांजैक्शन,
it will be give you single transactions over there. ठीक है. अच्छा, नाउ हाउ टू प्रोक्योर इट, ये मुझे ये कैसे मिलेगा, क्या कहते हैं, हाउ विल आई गेट दिस, गेट ट्रांजेक्शन आइटम डॉट क्यू, जो भी है यहाँ पे स्पेसिफिक कंटेंट, तो आई कैन यूज ट्रांजेक्शन आइटम डॉट, जैसे ही मैं डॉट करूंगा आई विल बी गेटिंग ए स्पेसिफिक कंटेंट आल्सो ओवर देयर. तो दिस विल बी अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, स्पेसिफिक कंटेंट. एंड नाउ इफ आई विल बी, जैसे ही मैं ब्रैकेट ऑन करूंगा, पहले से ऑन करूंगा, तो इट विल बी आस्किंग फॉर अ की. सो यू कैन सी द की इज फर्स्ट नेम इनसाइड द कोट्स, ऑलराइट, फर्स्ट नेम. इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा, मुझे ऑब्वियसली टाइप इनटू डॉट टू स्ट्रिंग करना है, इट एक्सेप्ट्स अ डॉट टू स्ट्रिंग आर्गुमेंट ओनली. ठीक है, जॉन आ गया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो यू कैन सी दैट हाउ वी कैन प्रोक्योर दिस पार्ट. तो दिस स्पेसिफिक कंटेंट विल बी यूज्ड इनसाइड द टाइप इनटू आल्सो. ठीक है, I'll be using it right now. चलिए, open workflow and we have it over here like this. One second. ठीक है, so यहाँ पे in transaction item dot specific content first name dot to string. ठीक है, so guys ऐसे ही मैं सबके सब टाइप इनटू यहाँ बना लेता हूँ इसके लिए, और जितने भी फील्ड्स हैं. So I'll be seeing you guys in a jiffy. Okay guys, so I have added all the type into activities over there, so 6-7 type into activities over there, and I have clicked on submit as well, and the process is running extremely fine as I just checked it as well on over there. ठीक है, तो ये मेरा प्रोसेस है पूरा का पूरा. यहाँ मैंने लॉग मैसेज यूज कर रखा है, इट्स सेइंग नो मोर ट्रांजेक्शंस नाउ, एंड इट इज लाइक दिस. तो हम इसके बाद आपके सामने रन करके दिखाएंगे दैट हाउ इट इज वर्किंग ओवर देयर अगेन एंड अगेन. ठीक है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. मैं आपको जैसे दिखाया, कुछ ट्रांजेक्शंस रह गए थे ऑब्वियसली, तो मैं इसको यहाँ पे जस्ट कॉपी इट लाइक दिस, रिमूव इट. पहले से क्या होता था कि हमें यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट नाउ दे हैव एडेड अ टाइप फीचर आल्सो. जब तक वो की स्ट्रोक्स को डिटेक्ट नहीं करेगा, इट वोंट बी डिलीटिंग माय क्यू. ठीक है, ऐड, क्विकली रन माय dispatcher robot. ठीक है, I'll run it. Dispatch done. Cool, I'll go to the performer again. ठीक है, ये है, just close it, and now you can see the bot in action, the robot in action over there. ठीक है, dependency is updated or not? अच्छा, quick glitch. चलिए, तो यहाँ मेरे पास पूरा डेटा आ गया है इनसाइड द व्यू ट्रांजैक्शंस पर. याद रखिएगा, बल्क क्यू आइटम्स विल बी pushing the data and setting the status as new. Please be very careful about the statuses as well over there. ठीक है, इसको हम रन करते हैं पहले यहाँ पे guys. We'll be running it. Let's run it in the debug mode only for now. चलिए, तो ये ओपन था पहले से मेरे पास, एंड एज यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग इट ओवर देयर. ठीक है, तो ये मेरा पूरा प्रोसेस है, इट इज रनिंग परफेक्टली फाइन ओवर देयर, एंड वी कैन ऑल्सो सी द आउटपुट. ठीक है, ये मैंने स्टार्ट पे क्लिक नहीं किया है, इट्स माय बैड. इट विल बी सेंडिंग एस ए स्कोर ओवर देयर एज वेल, कि स्कोर कितना था, क्या है. ठीक है, सो in the next part guys, we'll be seeing what is the deadlines and what are the priorities in the queue, and some different activities also which we can use to deploy queue inside the studio from the orchestrator. ठीक है, वो भी हम चेक करेंगे कैसे हम यूज कर सकते हैं queues को from the studio, और भी डेप्थ में देखेंगे. क्यू ये सिक जिस था how queues can be used inside of UiPath. We have done the RP channel example with the help of flowchart, and that is to correctly over there. ठीक है, so इसको हम करते हैं अभी के लिए बंद, because it is running perfectly, there is no issue over there guys, right? So I hope आपको समझ में आया होगा that how we can use a queue, how we can use the performer and the dispatcher performer model inside the UiPath Studio. Dispatcher will be only and only populating your queue. Performer will be performing some data, performing some actions on the top of your
queues inside the UiPath, or it will be mixture of queues and UI automation, and it can be anything, right? Queues can be used in any platform. It can be also used in SAP, SAP, ERP software as well, CRM software as well over there. ठीक है, उनका डेटा भी आप क्यू में कंज्यूम कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो कंज्यूम डेटा इनसाइड ऑफ अ क्यू इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. ठीक है, सो व्हाई डू यू नीड क्यूज, ये रह गया था. सो वर्किंग विथ क्यूज इज वेरी यूजफुल इन लार्ज स्केल ऑटोमेशन सिनेरियो. मैंने आपको बताया था, अंडरलाइन बाय कॉम्प्लेक्स लॉजिक. जैसे लॉजिक यहाँ पे कह रहा है कि जैसे मतलब कभी किसी की डेट है, उस ट्रांजेक्शन की डेट है, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन की डेट है, मुझे उसको अभी नहीं प्रोसेस करना है, बाद में करना है, उसकी प्रायोरिटी हाई है, कब होगा, तो एवरीथिंग विल बी सीइंग ऑन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, सच सिनेरियो पोज मेनी चैलेंजेस, ऑब्वियसली ब्रिंगिंग आइटम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टुगेदर, प्रोसेसिंग देम अकॉर्डिंग टू यूनिक लॉजिक, efficient use of resources or reporting capabilities at individual item and queue level. We can also monitor the queue. आप देख सकते हैं, हाँ 2 प्रोसेस पेंडिंग थे, तो we can also go over here and monitor the queue as well. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा है 2 रिमेनिंग है, 8 प्रोग्रेस हो गए हैं, कितने ऐड हुए हैं ट्रांजेक्शन, सब कुछ यहाँ पे मुझे दिखाया. कोई एरर आती है, एरर भी दिखाएगा, सब कुछ. इन नेक्स्ट पार्ट विल बी सीइंग ऑटो रिट्राइव फीचर एंड यूनिक रेफरेंसेस, या वो हम लास्ट पार्ट में दिखा देंगे. ठीक है, इन द थर्ड पार्ट ऑफ द क्यूज एज वेल. इसको मैं 3 चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा. ठीक है, SLA means service level agreement, means it is the bond between the company and the client. Bond means it is the time frame that हम इतने टाइम में प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे, इतने टाइम में हम डेटा डिलीवर कर देंगे, तो इट इज अ SLA ओवर देयर. ठीक है, कंसीडर द कस्टमर एनरोलमेंट प्रोसेस. क्लासिक एग्जांपल दे हैव गिवन अस. कंसीडर द कस्टमर एनरोलमेंट प्रोसेस थ्रू फॉर्म्स फॉर अ रिटेल कंपनी. ठीक है, तो कस्टमर एनरोल हो रहा है, फॉर्म्स के थ्रू हम उसको एनरोल कर रहे हैं अपनी कंपनी में. कस्टमर्स में कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ऑनलाइन पार्टनर्स, ओन शॉप्स, कॉल सेंटर. Thus having a smooth process of adding them to the process line is crucial. Further on, working with queues will ensure that these are processed within the SLA time constraints. Means जो डेडलाइन है, जो ड्यू डेट है उसकी, वो मैच की जा रही है वहां पे. That's a complex logic being followed over there. ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट गाइज विल बी सीइंग ऑटो रिट्राई, जो भी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में पूरा. तो ये मैंने आपको बता दिया परफॉर्मेंस डिस्पोजल में कैसे काम करता है. About all these activities, please wait for the next part. This was just a gist of queues, how we can use it inside the UiPath Studio. ठीक है, चलिए guys, thank you so much for being here. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. If you like the video, do give it a thumbs up and subscribe my YouTube channel as well. Happy automation guys, and as always, keep learning.